I've been blessed बहुत ज़्यादा. I have no regrets. I have no regrets. I think ये मेरा time था to come back because serials का ऐसा एक resurgence हुआ है, as I said, के audiences and everything. So I think time था to do this and I enjoy it. And you come with so much credibility, years of experience. So जाहिर है लोग भी आपको seriously लेके थोड़ी उसूलन बेहतर स्क्रिप्ट आपकी तरफ आनी चाहिए. I think आती होगी, उसूलन तो आनी चाहिए. आती है, बिल्कुल कुछ आती है, कुछ कुछ नहीं भी आती. It's वही है because इतना काम है ना, तो obviously सारी scripts तो amazing नहीं होंगी. But you try and pick the best. Actually काफ़ी surprising है और नहीं भी surprising कि कितने लोगों को ये character दोनों of the narcissist Dr. Shahnawaz and of the wife Dr. Farheen, दोनों को दोनों characters से कितना लोगों ने resonate किया है, which means कि लोगों की ज़िंदगियों में काफ़ी narcissists हैं, काफ़ी लोग बर्दाश्त भी कर रहे हैं, especially a lot of women. So I was quite overwhelmed, and so is I'm sure Saba Appa and Sanam. I mean, very pleased के इतना जो intent था writer का, एक तो beautifully conveyed by Saba Appa and the rest of the cast, and वो reached the audience. I think that's the main thing. Assalamu alaikum. Today I'm honored to be meeting a director who's done exceptional work throughout her career. और उनका most recent exceptional work हम अभी TV पे देख रहे हैं. It's the drama Dr. Bahu. I'm meeting Mehreen Jabbar. The last time I interviewed her was 6 years ago for another exceptional drama, एक झूठी love story. And I've been seeing her work throughout. हम सभी देखते आए हैं. We're all big fans of her. And today I'm here fangirling with Mehreen Jabbar. Please don't. I can fangirl a little bit because 3 दिन पहले हमने डॉक्टर बहू के बहुत ही remarkable heartbreaking episodes देखे हैं और वो तो बिल्कुल ऐसे हैं कि I'm sure everybody's been fangirling and telling you about it. नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, I think more importantly जो response मिला है to the writing, to Saba Appa, to the rest of the actors, एक करके नाम ले लेके सबने किया है. So it's quite overwhelming because it was especially last 2 episodes जो थे. हाँ, वो last 2 episodes थे when वो बड़े एक nerve को hit किया है. I didn't realize इतने लोग हैं. When Farheen dies. Yes. Spoiler alert जिन्होंने नहीं देखा. But नहीं hopefully अब तक बताना तो है हम किन episodes की बात कर रहे हैं. So amazing response. पहला इतना ज़्यादा था साड़ी सीन पे जो कट हो गया था, उसके बाद इस पे. अच्छा. हाँ, साड़ी सीन पे भी बड़ा कि क्यों नहीं दिखाया, कहाँ है ये सीन जो कट हो गया. Romance and death. हाँ, romance. My two contrasts. अच्छा, and this hit a nerve. And a lot of people connected with it also कि हाँ यही होता है, psychological wounds होते हैं. I think it was sad also the way people connected with it. I did reach the audience. Dr. Bahu overall has been reaching the audience. मुझे तो लगता है हर हफ्ते मेरी जब से शुरू है हर हफ्ते 2-3 सीन ऐसे होते हैं जो ट्विटर पे आ रहे होते हैं और इंस्टाग्राम पे और जिनकी बात हो रही होती है. कभी वो मिना की स्टोरी होती है, कभी वो सानिया की स्टोरी होती है और फरहीन की स्टोरी तो थ्रू आउट ही बिकॉज बेचारी her husband has been so negative. Everybody sees, a lot of people unfortunately see their own negative husbands in him. Again I would say because मैं पहले ही से कह दूं, आई थिंक एनी फाउंडेशन एक अच्छे प्रोजेक्ट की फाउंडेशन शुरू होती है स्क्रिप्ट से. अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है तो मैं जितना अच्छा लाइट कर दूं उसको और कैमरा इधर से उधर घुमा दूं एंड जितने बेचारे अच्छे एक्टर्स, लेकिन लाइंस जो निकलेंगी या जो कैरेक्टर्स वो पोर्ट्रे करेंगे तो इट्स बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट. सो वो इतनी इंटेलिजेंटली सनम ने कहानी वीव की है एंड मल्टीपल टॉपिक्स एंड इश्यूज विदाउट प्रीचिंग. क्योंकि प्रीचिंग जब करते हो फिर आप नो वन लाइक्स टू बी टॉक्ड एट, तो उसको इतना अच्छी तरह उन्होंने बुना है कैरेक्टर्स में. एंड देन आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी ensemble कास्ट मिल गई एक्चुअली. एंड आई एम ब्लेस्ड बिकॉज ईच कैरेक्टर जो अपने उसमें है, from the Phuppo to Dr. Shahnawaz and all the people in the middle, Hajra, Kubra, Shuja, Adil, Bakhtawar, Marina, Ahmad, Noore, Usman, Mazhar, all of them. किसी को भूल तो नहीं गई, और भी बहुत थे, but everyone gelled.
एंड वो जब एक चीज़ होती है कभी कभी रेयर होती है कि सब कुछ जेल कर गया, सो इट एक्सपीरियंस वाइज इट वाज अमेजिंग फॉर मी। हाँ, तो ये एक सवाल है। इनफैक्ट द कास्टिंग इज़ एक्सेप्शनल इन डॉक्टर बहू, बहुत अच्छी कास्ट है। एक तो सारे कैरेक्टर्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है। अगर मैं किसी को सुनाने बैठूँ ज़बानी तो शायद मैं ना सुना पाऊँ, बिकॉज इतना वो लाइक लाइफ इटसेल्फ इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड। तो द कास्टिंग, हाउ डिड दैट टेक प्लेस? I think casting was a mix of because ये Nadeem Beg was very much involved in this, Humayun and मतलब company, because they approached me and उस वक्त तक कुछ लोग कास्ट हो गए थे, कुछ हो रहे थे। so casting हमारे यहाँ usually होता है एक mixed director production company के साथ discussions होते हैं who's best for the role, and I just got very very lucky। और मैं क्या कह सकती हूँ। Okay. या एंड अ बंच ऑफ अस काइंड ऑफ, और मेन चीज़ होती है कि आपकी केमिस्ट्री सेट पे कैसी हो। उस तरह का कोई भी एक्टर इसमें नहीं है जो टॉक्सिक था, जो अपनी मनमानी करे, जो कह के मैंने नहीं आना या मैंने ये हो गया, बैक बाइटिंग, वो जो कभी कभी कुछ सेट्स पे हो जाता है, इस तरह का बिल्कुल नहीं था। इट वाज अ वेरी प्लेजेंट फन सेट विद अ लॉट ऑफ लाफ्टर। हालांकि हम इतने सीरियस सब्जेक्ट से डील कर रहे थे लेकिन हंसी मजाक बहुत था। हाँ, as we see in the BTS that you shared. अच्छा, by the way, Mehreen, you're also becoming quite the content creator. Yes, I know, I have to। मैं भी लेट इन लाइफ सीख रही हूँ। यूजली मैं पोस्ट करती हूँ अपने जब मैं न्यूयॉर्क में होती हूँ तो सड़कों के शॉट्स और इधर उधर पुराने निकाल के ना, वो जो होते हैं 90s के और 2000 के। अब क्योंकि करंट प्रोजेक्ट है, लोग देख रहे हैं, तो आपको वो रिमाइंड भी करना होता है कि देखते रहो भाई। हाँ, and to also make your audience part of the process कि देखो ये to just share your experiences with them. At least I feel that way कि अच्छा, जैसे कि in fact episode 28 था शायद जिसमें फरहीन की डेथ होती है, तो that morning before the episode aired you put up a picture on your Insta story जिसमें सब बहुत ही दुखी शक्ल के साथ स्क्रीन को देख रहे हैं and you are grinning but you are happy, so I'm like क्या होगा episode 28 में, क्या हो रहा है आज रात। वो कुछ और था लेकिन अच्छा, वो आई थिंक वो थप्पड़ वाला सीन था जिसपे हम सब, इफ यू नोटिस द क्लोथ्स, आई थिंक आई वाज ग्रिनिंग बिकॉज वो वन शॉट था एंड वो हो गया। लेकिन अभी जो लास्ट एपिसोड गया है उसके कुछ हैं BTS में लगाऊंगी। मैं कहा इतना वो सॉम्बर और सीरियस ओकेजन है, वो BTS जरा फनी था, मैं कहा पहले लोग रिकवर कर जाएं। हाँ, अभी तो सब उसके बाद लगा दूंगी। अच्छा, हाँ, तो you're the content। अच्छा, ये सोचा था कि, or just is this organic? Did you think that okay, I'm on this set, let me make BTS reels, a lot of them, so that later I can post them, make people part of the project? Was this a conscious thought कि वैसे ही naturally ही तस्वीरें वीडियो सब बना ही रहे होते हैं? नहीं, I'm known for even दोस्तों के साथ कि I love taking selfies and photos because I think I believe memory is important, especially जब आगे जाएंगे भूल जाएंगे। I know from your Instagram, yeah। वो तस्वीरें होंगी। So I love documenting जितना हो सकता है प्रोसेस। ऑब्वियसली बहुत सारे तस्वीरें सारी तो लगा नहीं सकते, बट अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि टुवर्ड्स द एंड जा रहा है इवेंचुअली, तो जो भी थी मेमोरीज वो मैं लगाऊं ज़्यादा, बिकॉज जब ख़त्म हो जाएगा फिर कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अभी सब कनेक्ट करेंगे जाहिर है। इसी तरह मुझे, बल्कि आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन एंड इमीडिएटली आफ्टर आस्किंग यू दिस क्वेश्चन आई रिमेंबर जुर्म, और मुझे याद है जुर्म आ रहा था, और जुर्म एक शॉर्ट सीरीज थी, मिस्ट्री थ्रिलर, सो आई लव मिस्ट्री थ्रिलर, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एंड आई लव शॉर्ट सीरीज आल्सो एज डू यू। सो द थिंग इज के उसके भी यू पुट अप अ लॉट ऑफ BTS, आई रिमेंबर। सो गुड मेमोरी मैन। आई पुट अप जुर्म की भी, और फिर हैशटैग ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स, वो 3 मैंने किए थे, तो काफी मैंने डाले थे। Yes, you did. So this is something I think I have to remember, कभी-कभी मैं भूल जाती हूँ सेट पे कि you should be taking, and कभी ऐसी चीजें हो रही होती हैं मजे की कि ऑटोमेटिकली फोन तो साथ ही लगा हुआ होता है ना, अभी भी इधर ही कहीं पड़ा हुआ है, unfortunately can't get rid of this, so then I just start filming। हाँ, अच्छा, you said कि it was a set where it was very pleasant, everybody was great to work with, but I remember back when you decided कि नहीं मैं कुछ दिनों ड्रामों से ब्रेक लूंगी, one of the reasons you told me was that कि you're tired of diva-like behavior also। So हाँ, now you're back, the divas are still around, what are you going to do? I try my best कि मैं divas के साथ काम ही ना करूँ। Is it working so far? So far I haven't I haven't got any divas yet। You've gotten lucky। अगर वो divas हैं भी तो बेचारे I think सेट पे आके वो ठीक हो जाएंगे, hopefully इंशाल्लाह। Plus you come with पेशेंस नहीं है divaism का, क्योंकि काम करना, I think main thing focus होना चाहिए, काम करो,
बाकी नखरे, मतलब द थिंग इज़ कि हम जिस तरह जिन हालात में ड्रामे बनते हैं, आई थिंक ऑडियंस को कम पता है कि बहुत मुश्किलात होती हैं, बहुत हमें प्रोडक्शन एंड जनरल सिचुएशन में बहुत आगे जाना है। हम वो डेवलप्ड इंडस्ट्री नहीं है, इस जस्ट किसी तरह सारे लोग बना लेते हैं और इतने मिलियंस ऑफ ऑडियंसेस देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, बट एवरीवन परफॉर्म्स वेल, एक्टर्स हो गए, क्रू हो गए, बट जो सर्कमस्टांसेस हैं वो काफ़ी मुश्किल होते We हैं। are very talented people, but We the are infrastructure is pretty weak. infrastructure is highly lacking for the kind of product जो आ रहा है आजकल। So I think उसमें I hope investment in the next 50 years हो जाए कुछ। बट उन हालात में काम करना आई थिंक इज अ बिग टेस्टमेंट क्रू को और कास्ट के लिए भी। हाँ, और इतना अच्छा काम करना जो दुनिया भर में देखा जाए, दुनिया भर में जिसकी बात हो, ये तो डबल ट्रिपल मेहनत है compared to maybe people working in better infrastructures, yes you know. yes yes with For rules sure. and regulations and proper costing and people being paid rightfully, you know, obviously every country का different industry standards होते हैं, but यहाँ हमारे यहाँ जैसे यूनियनाइजेशन नहीं है, बेचारा हमारा क्रू जो है वो बस यू नो एट वेरी लो वेजेस, काम बहुत ज़्यादा होता है। लो और क्योंकि ना बाहर लो आप देखो और लो एंड यू नो, एंड बाहर अगर आप देखो अगर 1 घंटा भी ओवर टाइम हो देन यू आर कॉम्पनसेटेड। तो उस तरह अभी नहीं पहुँचे हम। तो इंडस्ट्री में तो हैं इश्यूज, बट आई डोंट नो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट, फॉर एग्जांपल रॉयल्टीज हो गई, एक्टर्स डायरेक्टर्स क्रू नेवर सी एनीथिंग, वो जो पेमेंट हो जाती है। सो बट या हाँ, you've always been very vocal about it, and I remember having similar conversation with you 6 years ago. यानी कि कहानी वहीं ठहरी हुई है, वही कोई है। इम्प्रूवमेंट नहीं आई। मतलब पैसे ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों के पैसे थोड़े बेहतर हो जाते हैं, पैसे टाइम पे आ रहे हैं, लेकिन टाइम पे आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। इट रियली डिपेंड्स प्रोडक्शन हाउस के मूड पे और चैनल के मूड पे कि क्या सिचुएशन है। कुछ बेहतर हैं दूसरों से, बट अगेन भी मैं हर इंटरव्यू में कहती हूँ, आई थिंक लोग थक गए होंगे सुन सुन के, भाई एक इट्स अ सिंपल मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो होता है ना, कि आप एक प्रोसेस स्टार्ट कर लें ऑफ पेमेंट्स कि सो मच इज़ ड्यू एट दैट टाइम एंड उसको फॉलो करें। आप हर इंटरव्यू में कहती हैं, लेकिन और आप कब से कह रही हैं, ये भी नहीं कि आज से कह रही हैं, 10 साल के आपका पुराने इंटरव्यू भी मैं उठाऊंगी, आप कह रही होंगी, लेकिन शायद ये कहते रहना ज़रूरी है। जब कहना ही छोड़ देंगे फिर तो बस हो वो गई ये ना। कि अब नहीं, जब बाज़ आप इतना कहते हो ना तो वो एक कान से सुन के वो आई थिंक किसी को फ़र्क नहीं पड़ता जिनके यहाँ That's पावर है। sad, but I wanted to know, you're in a position of power though. You have credibility, years of experience, people Yeah. respect you, they want you on board as the director. Can you throw your weight around and sometimes get things done for your actors जिनकी payments delay हो रही हैं, या किसी भी crew में कुछ हो रहा है? I कभी do आप try, बिल्कुल I do try, you know, to put in a word and अब मतलब असल में आपकी खुद भी डिले हो रही होती है। नहीं मेरी तो फिर भी आई थिंक टॉप एक्टर्स एंड टॉप ऑफ द लाइन क्रू की फिर भी कम होती है, बट यू नो आप कहते हो, एंड अगेन एज आई सेड प्रोडक्शन हाउसेस खुद फंसे हुए होते हैं बिकॉज वो चैनल्स से नहीं आता, चैनल्स फंसे हुए होते हैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग से नहीं आ रहा पैसा, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग विशियस साइकिल, long vicious cycle, yes, complicated. a very round vicious cycle. We are still there where we were 6 years ago. I remember discussing this with you, and कहानी वही है अभी तक। अच्छा, you're trying to work in better environments where things are more professional, and of course आपने अभी डॉक्टर बहू की, your return to long serial was marked by डॉक्टर बहू, और अब आप कर रही हैं इमाद इरफानी, सनम सईद and कोमल मीर are part of the cast among others. Yes. I don't know the name of the drama. It is unnamed so far. It is unnamed. It has a name. It might be changed, so I won't say the name in Work in case. progress है उसका work in नाम। progress ही है वो। वो भी एक बहुत अच्छी टीम है। I know the actors have always been complimented by people that they've worked with के बहुत professional है, तो I think you're in a good space now. Absolutely. मतलब total, you know, I worked with Sanam obviously पहले, इमाद और कोमल के साथ पहली दफ़ा कर रही हूँ, but totally absolutely professional, time पे आना, and and no, you know, no bad blood, good positive energy on set. And Marine, you know, you've always gravitated towards
new genres. You know, you'll dabble with a thriller, you'll do something gritty and completely non-romantic like Nadan, right? नादान कितना एक्सपेरिमेंटल था कि उसमें कोई रोमांस ही नहीं था. हमारे लोग तो ढूंढ रहे थे कि कब लड़का लड़की की शादी होगी. वो टाइम नहीं मिला उनको शादी करने में, वो मॉब आ गया ना बीच में. मॉब आ गया था. तो the thing is के but now you're doing dramas which actually you can tell the story in a different way, but they do fit into the commercial category. You know, Dr. Bahu is very भाई इट इज़ डिफरेंट. ये तो बात है कि कहानी उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत लेयर्ड है, बट है वो ससुराल वाली बहू वाली कहानी. इसी तरह मुझे ये दूसरे ड्रामे की भी स्टोरी पता है. ये भी काफी रोने वाली है. रोने वाली है? नहीं नहीं, रोने वाली नहीं है ये. हाँ. अच्छा, आप इसे रोने की तरह नहीं सुनाएंगी? हाँ हाँ, रोना नहीं, बट इट्स व्हाट ग्रेविटेटेड, मतलब मैंने क्यों ये किया इज क्योंकि मेरे लिए तीनों का कैरेक्टर जरा यू नो मार्जिन बहुत था, एंड इट्स वेरी फोकस्ड ऑन इन तीनों पे, और एक ऐसे इमोशंस को एक्सप्लोर कर रहा है विच आई वाज इंटरेस्टेड इन, अबाउट लव एंड शेयरिंग लव एंड व्हाट दैट मीन्स, लूजिंग लव. सो उस तरह की कहानी थी. सो दैट्स व्हाई एंड कम्प्लीटली डॉक्टर बहू से बिल्कुल ही डिफरेंट है. हालांकि उसमें यू नो द सपोर्टिंग कास्ट में इज बख्तावर मजहर अगैन, शऊद अलवी जिनके साथ बहुत अरसे बाद मैं काम कर रही हूँ, सबाहत बुखारी, another young actor called Sabahat also. So it's but क्योंकि डॉक्टर बहू में इतने लोग थे ना, इसमें इतने, so it's a very different and I'm curious कि ये कैसा रिसीव होगा. Hopefully इंशाल्लाह अभी I'm 50% through. नहीं, जो कहानी मुझे पता है, unless it gets changed, I think ये भी वो होगा जिसमें सब औरतें कहेंगी कि हाँ ये होता है. ये बहुत होता है ना हमारे ड्रामा में, नीचे YouTube कमेंट्स में, हाँ ये जुल्म होता है, ये तकलीफ होती है. अच्छा, I don't know what you कनेक्ट करेंगे. हाँ, I hope it's all about प्यार मोहब्बत. So प्यार मोहब्बत, people connect with प्यार मोहब्बत, love, losing love, जुल्म, मौत. What brought you back to long serials and प्यार मोहब्बत जुल्म मौत? I think to be honest दो चीज़ें हैं. एक तो फाइनेंशियल, पैसा कमाने के लिए आपके पास सीरियल ही है, अनलेस आप एड डायरेक्टर हो जिनको बहुत काम मिल रहा हो. इवन द एड इंडस्ट्री भी बहुत चेंज हो गई है, बहुत यंग डायरेक्टर्स आ गए हैं. So and this is my profession, so I have to figure out, obviously 4 एपिसोड, 5 एपिसोड, 6 एपिसोड is good because टाइम कम लगता है. तो एक तो फाइनेंशियल था. दूसरा आई फेल्ट इन दिस एज जो सोशल मीडिया अब आ गया, बिकॉज मेरे सारे जो थे पहले वाले, वेदर दाम दोराहा, मलाल, जैक्सन हाइट्स, वसल, वो सारे थे प्री द सोशल मीडिया हाइप. जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब वाज नॉट, उस तरह नहीं था 2016-17. ये अब आया है. सो जो अप्रोच, एक्सेसिबिलिटी हो गई है सीरियल्स की, इतने लोग देख रहे हैं, डायस्पोरा देख रहा है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सो ऑडियंस बढ़ गई है. सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर दैट, एंड वो ऑडियंस लंबे सीरियल्स के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 4 एपिसोड और 8 एपिसोड जनरली, बिकॉज आप इन्वेस्ट हो जाते हो, यू नो 30-40 एपिसोड देखते रहते हो, ट्वाइस अ वीक आ रहा है. सो देन आई थॉट आई नीड टू डू इट, ताकि मैं भी एक ऐसी कहानी बताऊं कि जो एक मतलब याद हो जाए कि ये वो 4 एपिसोड बाद ख़त्म ना हो जाए. एंड थर्डली नदीम, ऑफ कोर्स नदीम बिग थिंग, वो कहता कि आ जाओ तुम वापस लॉन्ग सीरियल्स में. मैं कहती कि नहीं यार, अब वो कहता है कि फंसा लिया ना, अब तुम करे जा रही हो सीरियल्स. But he was right. He was right. And then of course the script was, you know, I said okay, this is a very interesting script, and अगर मैं वापस आ रही हूँ तो इसी से आऊँ. Is it more tedious though, going back to the 35, 34? It's too much. It's too much. It's just too much. खत्म ही नहीं होता. मज़ा भी आता है, but I wish कि 100-150 मतलब 120 दिन ना होते, because आपका usually आपके schedules जो होते हैं, it's 6 days a week, सिर्फ संडे ऑफ होता है. और संडे वो ऑफ भी क्या होता है, बिकॉज सैटरडे आप 10 बजे फारिग होते हो, 10:30 घर पहुंचते हो, फिर यू नो नेक्स्ट डे की शूट की प्रिपरेशन होती है. सो बाय द टाइम यू स्लीप, देन यू नो 12-1, देन अगेन द सेम. सो इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स और डूइंग एनीथिंग एल्स, आपके पास फॉर 4-5 months वेरी रेजिमेंटेड, ओनली संडेज ऑफ टाइप लाइफ जनरली होती है. कभी कभी हो जाती हैं छुट्टियां, ईद की आ गई है, ये हो गया. सो दैट वे आई फील ज़रा लंबा है.
और उसके But बावजूद डिलेज हो जाते हैं क्योंकि इतना लंबा होता है ड्रामा, हाँ और इतनी सारी, स्पेशली डॉक्टर बहू तो इतनी बड़ी कास्ट थी, कोई yes कहीं कुछ, कोई मजबूरी में भी चला जाए, बीमार भी हो जाए। नहीं मैं भी चली गई थी बीच में 2 महीने. आई हैड टू द प्रोजेक्ट हैड टू स्टॉप बिकॉज मेरा पहले मुझे वापस जाना था. तो बट अच्छा। इसको मैंने जो मैं अभी कर रही हूँ मैंने थ्रू आउट रखा है कि नॉन स्टॉप अप्रैल से नीड टू कंप्लीट बिकॉज मुझे जो लंबे चल जाते हैं ना 7-8 महीने आई कांट डू इट. एक तो हाँ कंटिन्यूटीज भी हाँ लोगों की शक्लें बदल जाती हैं हाँ इतने लंबे अरसे में. हाँ। हाँ और स्पेशली अगर बहुत एक्सटेंसिव कास्ट हो, एक हाँ हमेशा एक रिस्क है कि जब फिर आप वापस आए तो अगर उनमें से कोई अवेलेबल ना हो फिर क्या करें। एग्जैक्टली और लोग बिजी भी बहुत हैं माशाल्लाह से. लोगों को हाँ काम है, लोग बहुत काम है. yeah, सो younger actors are even doing ad campaigns and यस Instagram shout outs and all बिल्कुल that, बिल्कुल so बिल्कुल even बिल्कुल that's there. बिल्कुल. अच्छा, हाँ डॉक्टर बहू बहुत टाइम से शूट हो रहा था, ये मुझे पता है कि एट डिफरेंट टाइम्स आई वुड हियर कि ओ डॉक्टर बहू का शूट चल रहा है, एंड ऑब्वियसली एवरीबody वाज वेटिंग फॉर इट, हाईली अवेटेड था, यस बहुत लंबा वो चल। शूट लास्ट ईयर खत्म हुई हम्म। एंड आई थिंक हमारा लास्ट ईयर आना था बट देन पहले वो आया मेरी जिंदगी है तू ओके। फ्रॉम सिक्स सिग्मा. सो या फिर हमारा उसके बाद आया. या अच्छा, जब लंबा खिंचता है तो do you maybe lose some of the excitement that you initially have for a project, and do the actors also start losing excitement? आई थिंक मे बी कुछ दिन 1-2 दिन शुरू सेट्स पे थोड़ा होगा टू गेट बैक. लेकिन एक दफ़ा आप क्योंकि इतना इंटेंस काम भी होता है ना, आप इतने Hmm. इन्वॉल्व होते हो Hmm. तो जब आप वापस आते हो फिर उसी उसमें आप You get into the groove. यू गेट इनटू द ग्रूव एंड द स्केड्यूल. या अच्छा। ऐसा इतना नहीं होता. Who's your favorite Doctor Bahu character? Who's my favorite Dr. Bahu character? Yeah. It's tough. मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगी बच्चों के बीच में. ओहो, एक तो होगा that you connect with more. I'm I not saying connect. actor, I'm saying character. Character. Wow. जैसे mine was Farheen. अभी डेड भी हुई ना तो मैं इमोशनली कनेक्टेड भी हुई अरे हूँ। हाँ नहीं I don't have a narcissistic husband so I can't No, connect. no, I'm not saying I have one, but she died in such a tragic way. हाँ that's true. Heartbreak से जो जब कोई Heartbreak मर is जाए तो। yes हाँ। yes no no. I mean I feel each character is written so well. तो Yeah. बड़ा मुश्किल है because वही जो बात हो रही है ना कि layered हैं इतने सारे. क्योंकि जैसे सानिया का भी वो कह रहे थे ना कि ओ सानिया is going to be an independent doctor like she's going to टक्कर डॉक्टर हाँ, ये शाहनवाज. सबको सीधा कर देगी। हाँ सीधा कर देगी Instead, but वो सभी obviously हो वो गए। एक she is a flawed character also. Yeah. सारे हैं. हाँ। कोई वो black and white character No, है ही very नहीं. great. Even शाहनवाज with his madness कुछ moments हैं जहाँ वो भी he becomes sense. soft, he makes sense. Yeah. So and it's very interesting. एक चीज I want to say कि देखो they've all I mean they're brilliant characters all of them but let's say सानिया का character is something that is more उसमें क्योंकि उसका कोई चीटर हस्बैंड नहीं है, उसका नार्सिसिस्टिक हस्बैंड नहीं है, उसका एक हस्बैंड है जो बड़ा अंडरस्टैंडिंग है बट एट द सेम टाइम gets completely throws tantrums, Yeah. becomes a red Immature. flag. So she is a more everyday character as compared to someone who's suffering let's say extreme abuse or infidelity अपने मियाँ That's से. true. And उस तरह के characters लिखना और करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है I feel because लोग larger than life जब हो जाए ना चीज़ें कि आप पिट रहे हैं तो वो फिर ये क्या बात है इस कैरेक्टर की. बट अगर आप जो चॉइसेस कर रहे हो लाइक सानिया डज लेट्स से शी उसने करप्शन का किया, बहुत लोगों ने कहा गलत किया, ये क्यों दूसरों को दे रही है, जर्नलिस्ट को दे रही है, राइट नाउ आपके पास दोनों ओपिनियंस हो सकते हैं, उसने सही किया या गलत किया. बट उसने किया, अब वो फ्लॉड है या नहीं है ये एक जजमेंट है. इन हर माइंड शी इज़ नॉट फ्लॉड, राइट. ये मैंने किया बिकॉज मुझे करप्शन नहीं देखना. यस मेरा फादर इन लॉ था, मैंने छुपाया अपने मियाँ से पहले. अब लोग कहते हैं ना क्यों छुपाया, भाई इट्स अ स्टोरी. दिस इज मैं ना ही सनम फरिश्तों की कहानियां नहीं बता रहे, ये इंसानों की कहानी है जहाँ वो गलतियां भी करेंगे. और एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन पर्सनैलिटी इज नॉट ऑल गुड और ऑल बैड. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेज, राइट. सो आई फील पता नहीं अब कहाँ मैं निकल गई, बट मैं कह रही थी कि सानिया's character is a little more difficult, let's say, than the others who are very obviously in pain. And you know why they are in pain, and you know why clearly. Yeah. तो इसका बहुत tough, and that is the beauty of the layering of the characters, because even मरीना को लोग कह रहे हैं ना कि इतनी बुरी माँ अब आगे जाके आपको भी
उसकी भी कुछ समझ आएगी. Hmm. सो इट्स नॉट कि उनको प्लांट कर दिया है विदाउट एनी बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट सारे कैरेक्टर्स. एंड इवन लेट्स से अदील्स कैरेक्टर, Yeah. इतनी गालियां पड़ी उसको बट एंड वो है, उसने बहुत गलत हरकतें की हैं, हाँ. बट यू विल सी अ मैन एंड यू विल सी समवन यू नो इन अदील्स कैरेक्टर, Yeah. राइट. और वो जिस तरह वो कहता है मैं कैसे मेकअप, हाउ कैन आई यू नो व्हाट कैन आई डू, अपने लिए तो वो जस्टिफाइड है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ इसके लिए कर दूं. हाँ. किया उसने गलत है, हाँ. बट सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ जस्ट एक्सप्लोरिंग ह्यूमन इमोशंस जो स्क्रिप्ट ने की है, ऐसे ही एंड ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड बाय दीज एक्टर्स, बिकॉज ये समझ के किया है एक एक कैरेक्टर ने. बहुत कॉम्प्लेक्स है. सो या बहुत मैं तो कुछ नहीं किया एक्चुअली. आई जस्ट बेसिकली आई गॉट लकी. आई जस्ट पुट द कैमरा in the right place. No, no. And I have to give a big shout out to the team and Tayyab, who's my cinematographer. बहुत उसने मेहनत से ये लाइट किया एंड अनकन्वेंशनल अप्रोच भी लिया हमने कुछ जगह. सो अब लाइटिंग में फ्रेमिंग में एंड यू नो बिकॉज यूजली हम एक यूज टू हो जाते हैं ड्रामा में कि इस तरह हमने करना है. ये इट्स मीडियम जो चलता जा रहा है, ब्राइट लाइट्स एंड ये वो उसको. सो ही वाज अ ह्यूज हेल्प एंड द रेस्ट ऑफ द टीम आल्सो, बट यू नो फ्रॉम द आर्ट डायरेक्टर साइरस टू वार्डरोब, फेयर्स, वेस्ट, द एडीज. सम्या बेचारी एक थी, फिर हमारा सेकंड एडी यू नो द उसामा था, उसके बाद हमारे पास थे ही नहीं. शी मैनेज्ड अ लॉट ऑफ इट बाय हरसेल्फ बिकॉज यस ही हैड अ फैमिली इशू. सो द टीम काइंड ऑफ वर्कed through and they are always the people who are not talked about. Again, also I would say the background music, Mohsin Aladitta has done a fabulous job. The editor Akhtar, मैं उसके साथ मतलब डॉक्टर बहू शुरू हुआ था लास्ट मार्च. मैं अभी तक एडिटर, हिम एंड आई टॉक एवरी डे बिकॉज आई रिव्यू द एपिसोड्स, फिर हम बैक एंड फोर्थ जाते हैं उस पर. So you know the process continues and continues. क्या अभी भी कुछ एपिसोड्स एयरिंग से पहले फाइनलाइज हो रहे हैं? हाँ वो होते हैं, हम बार बार देखते हैं, उसकी म्यूजिक होती है. एंड ऑफ कोर्स आई गॉट लकी बिकॉज नदीम बेग सजेस्टेड द ब्यूटीफुल OST बाय साद सुल्तान एंड वो सेट हो गई. एनीवे बहुत बोल दिया मैंने. अच्छा, यानी कि आप वो ड्रामा शूट करते करते वापस डॉक्टर बहू का एपिसोड भी देख वो मैं घर आके वो भी करती हूँ. यस. लॉन्ग सीरियल में आई भी तो कैसे आई, फुल फ्लेज्ड. नींदें उड़ गई. बट अच्छा ये नहीं आपने कहा कि मेरा कोई काम नहीं है, मैंने बस कैमरा रखा. बट कम ऑन, you have done such a beautiful, there's been such a beautiful in which you've narrated so many things. Most recently the death sequence के एक बाद एक family members आए. It's like we were going into the rooms and feeling the emotions with them. You knew this was a very important scene, of course. Yes, ज़रा प्रेशर था बहुत ज़्यादा. एंड या बिकॉज वो अनकन्वेंशनल तरीके से कैसे हो सकता है विदाउट गेटिंग टू ड्रामेटिक, बिकॉज वो भी होता है ना कि आप दिखा के फिर सब भैं भैं करके रोना शुरू हो जाएं या और म्यूजिक चल जाए और सो आई फेल्ट लाइक द ऑडियंस द कैमरा शुड डिस्कवर हर, बिकॉज लास्ट हम जब देखते हैं डॉक्टर फरहीन जो है बस आंखें बंद करती हैं, यू फील शी इज गॉन टू स्लीप. सो वी वांटेड कि कैमरा इसके सानिया के साथ अंदर जाए और ऑडियंस भी उसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर करे. एक ड्रेड था कि ओह ये तो नहीं हो गया. आई वाज गेटिंग मैसेजेस जब ये चल रहा था, मैं सेट पे थी कि oh my god, is she dead, oh, people were watching it and they couldn't wait. They couldn't wait. I said keep watching. अच्छा, these are people watching it at 8 p.m. prime time ना, तो वो forward करके check नहीं करते YouTube पर. So yeah, and because I have forgot to mention, sorry, the makeup team also, Azim, Arbaz, there's so many people, you know, and मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ, लोगों को नहीं फर्क पड़ता क्या नाम है, but अगर ये लोग ना हो तो हम लोग फिर यू नो नहीं कर सकते. इट इज़ बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मीडियम्स जहाँ सारे लोग, इट्स लाइक योर कंडक्टर एंड you're just, you know, you have to manage the whole orchestra. Yeah. So एक out of line गलत violin play कर लिया तो पूरा everything has to be just right. Just right. Yeah. ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सानिया का कैरेक्टर वाकई the characters with less obvious problems. प्रॉब्लम तो उसकी भी है मियाँ की, बट वो एक relatively less problematic बात है ना compared to Shahnawaz being a narcissist or Minna being cheated on. Infidelity. I mean, what a performance also by, I mean, even that track destroyed me as well.
The Hajra Adil Meera track was also devastating. And also I think जो सानिया का था, वन थिंग पीपल केप्ट सेइंग ना कि वो क्यों अड़ी हुई है कि मैंने डॉक्टर रुबीना के साथ काम करना है, कर ले अपने फादर इन लॉ के साथ काम. इट्स लाइक सेइंग पूरी ज़िंदगी आपने किसी को आइडलाइज किया है, लेट्स से मैंने एक डायरेक्टर के साथ काम करना है, मैंने सोचा हुआ है, एंड मुझे फोर्स करके आप कहीं और कह रहे हो कर ले. व्हाई इज़ दैट ओके? फॉर नो रीज़न. व्हाट इज़ द रीज़न? बट हम इतने बाज़ दफ़ा एक्चुअली हमारी सम पार्ट्स ऑफ आवर ऑडियंस एंड कॉम इज़ सो कंडीशनड कि आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, आप क्यों बोलना है, हर चीज़ अंदर ही रहे, घर के अंदर रहे. ये इंजॉयबल भी है. आई मीन आपके पिछले ड्रामे बाकी सारे प्री सोशल मीडिया एरा में थे, जब यू पीपल वुड बी टॉकिंग अबाउट देम बट यू वुडंट सी द कॉन्वर्सेशंस लाइव ऑन योर इंस्टाग्राम और यूट्यूब, एंड सो यू आर एक्चुअली सीइंग डिफरेंट ओपिनियंस. दिस मस्ट बी फन. इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ फन. यूट्यूब पे व्हेन आई सी काफ़ी गालियाँ भी पड़ती हैं, वो भी मज़ा आता है कि लोग इतना इन्वॉल्व हो गए, क्या कर रहे हैं, जैसे असल की बोरिंग ड्रामा. मैं कहा एपिसोड 28 तक बोरिंग है, देख क्यों रहे हो? 28 पे जाके बोरिंग कैसे? बट यू आर नॉट दैट बोर्ड दैट यू आर वाचिंग द 28th एपिसोड. सो इट्स फन. एक्चुअली सोशल मीडिया इज मैड. आई मीन आपको पागल भी कर सकता है और कर देता है, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे थिएटर में आपको फौरन पता चल जाता है ना रिएक्शन ऑडियंस का, थिएटर एक्टर्स को, इसी तरह सोशल मीडिया से we all get to know what people are thinking and feeling episode per episode, scene by scene. Yes. Yeah. Adil Hussain is somebody who has worked with you, his best roles really, and Dr. Bahu maybe, even though less scenes, but every time he's there, आपको अदील नजर आता है. हालांकि you're not supposed to like the character, of course, he's cheated on his wife and all that. Do you think Adil is very underutilized? I've always felt it. No, absolutely, and I think because उसने खुद भी, I think Adil didn't do as much TV. I think he was careful, you know, for a few years. So I really think, and he gives it all. Like I think Hajra said in one of her interviews also, because Hajra, another phenomenal actress, and the pairing of her and Adil, they really took their, you know, any other, maybe another set of actors would have said, oh यार ये तो एक typical, मैं तो cheat कर रहा है, मैं poor wife हूँ. You can take it that way also, but जो depth इन दोनों ने डाली उन characters में, it is them and to decide कि इसको हम किस तरह differently किस तरह approach कर सकते हैं और कितना लोगों को feel कराएं. Yeah, because and same with I think even Shuja, because I hadn't worked with Shuja and Kubra also. पहली दफा even सबा आपा के साथ पहली दफा काम. Really? Yeah. दो दफा होते होते रह गया. So finally, I'm so happy. Shuja just and Kubra kind of just, you know, initially their chemistry जो इतनी on fire थी, बाद में obviously real marriage set in, तो और on fire तो delete भी हो गया, हाँ, on fire भी delete, on fire तो हट गया था. But all of them have very difficult facets of their personality. Even like Shuja also, you know, a sweet, good-looking guy, sweet romantic boy, but turning into a total idiot also. Yeah. And an intense guy. तो बहुत अच्छा उसने भी किया है. So मैं तो आई थिंक लंबा हो जाएगा. मैं एक एक की, मुझे डर भी है ना मैं भूल नहीं जाऊं किसी को. भूलूंगी नहीं, लेकिन आपके पास आप ये डिस्क्लेमर कर दें कि अगर मैं किसी को भूली वो जान के नहीं भूली. टाइम नहीं, अगर आप पूछेंगे तो मैं एक एक की बात बता दूंगी. बट वैसे डॉक्टर बहू ऐसा है. और इनफैक्ट जब आप इवन उससे रिव्यू करने अगर मैं बैठूँ ना, तो मैं जब एक का नाम लेती हूँ तो खुद ब खुद दिमाग दूसरे पे जाता है, फिर तीसरे पे जाता है. सीन बाय सीन द एक्टर्स आर जस्ट एवरी सीन. या it's really good luck, man. Thank God. Yeah. What a comeback, Mehreen. What a comeback. I mean, thank you. No. जैसा भी है. I mean, some people don't like the play also. Really? ऐसा थोड़ी है कि Who are the some people? नहीं काफी लोग हैं. Not देखिए हर चीज सबको तो नहीं पसंद आ सकती. It's impossible. ऐसी बहुत ही कम चीजें होंगी. बट बहुत लोग हैं जो नहीं बहुत से मैंने शुरू में भी देखे काफी, which is fine. मतलब आपको different opinions रखने चाहिए. अच्छा. सबकी टेस्ट के लिए सब कुछ नहीं होता. Which is, but as long as it's noticed, it's commented on, we are okay. अच्छा. वैसे जनरली ऑल अराउंड डॉक्टर बहू तो लोगों ने पसंद किया. अच्छा. मैं आज ही सोच रही थी कि बिफोर फरीन डाइज ना, शी सेज टू हर बहूज के तुम कभी अपने आप को किसी के लिए बदलना नहीं, स्पेशली जो तुम्हारी कदर ना करे. Right, the drama is fresh in my mind, so I remember that dialogue, and I thought, okay, this is the crux of the drama actually. That sure, you know, be there for people, but don't change so much कि वो आपकी कदर भी नहीं करे, आप फिर भी उनके आगे
करे जा रही हैं, which is what Fareen's life teaches us. It is a story about female characters though. Yes, males की भी journey है, but ज़्यादा आप सानिया, मिना, फरहीन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, पुप्पो के पर्सपेक्टिव से भी कभी कभी देखते हैं. Do you think it helped that you're a female directing this very female centric, woman centric story? So ये काफ़ी लोग पूछते हैं Female gaze जिसे कि कहते फीमेल हैं. गेज बहुत जगह इम्पोर्टेंट होती है. ऑल्सो राइटर भी फीमेल है. हाँ, of course. आई थिंक कुछ नुआंसेस जो जैसे सनम ने लिखे और व्हाट मे बी आई टुक आउट ऑफ द राइटिंग, मे बी वो सेंसिटिविटी कुछ जगह हेल्प्ड. बट मैं क्योंकि मैंने इतने फिल्म्स देखी हैं एंड शोज़ देखे हैं जहाँ फीमेल स्टोरीज आर टोल्ड सो वेल बाय मेल डायरेक्टर्स ऑल्सो. तो ये मैं कह नहीं सकती कि जस्ट बिकॉज मैं औरत हूँ तो मैंने इसमें वो किया है. It's about a gaze, it's a human gaze, it's a director's gaze के and it's a style, right? I mean इतनी world over आप देख लो, इतने amazing stories of women सब औरतों ने तो नहीं डायरेक्ट की भी. नहीं. हाँ, तो I feel कि कुछ जगह it helped, but I wouldn't say कि यही होना चाहिए कि औरतों की कहानियाँ सिर्फ औरतें बताएं. ऐसा नहीं होना चाहिए. That way I can't tell आदमियों की कहानियाँ फिर. हाँ, you're right. You're right. Why should you restrict yourself? You want to tell all sorts of stories. It's just about a perspective, एक डायरेक्टर का perspective और style. अच्छा मरीन, पता है मैंने तो जुर्म भी बहुत शौक से देखा था, नादान मुझे बहुत अच्छा लगा. और नादान मुझे यूं ही अच्छा लगा था कि वो एक टिपिकल रोमांटिक एंगल पे नहीं गया, ट्राइंग टू टेल यू कि और कहानियाँ भी हैं जो हम टीवी पे दिखा सकते हैं. आई लव्ड इट. एंड बट दिस जो हमारे पाकिस्तानी लॉन्ग प्लेज होते हैं ना, जिसमें ऑडियंस इतनी इन्वेस्ट हो जाती है, ये हैवी वॉचेस भी होते हैं. यू नो, लाइक एक दो एपिसोड दुखी होते हैं, दे शेक यू अप, दे मेक यू वांट टू क्राई, which is good, but also I find a bit difficult, right? I know. Yeah, जैसे yeah. एपिसोड 28 देखकर आधे घंटे तक आपका दिल भारी रहता है. हाँ. तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है ना वो भारीपन. हाँ बिल्कुल. Nothing like a good death to get people going. True. तो लोग बड़ा because we love, हम emotional कौम है ना. हाँ. मजलूम औरत और emotional हम कौम है, लेकिन also जिस तरह सबा ने उसको पूरा, it's not just सिर्फ death कैसे, but उससे पहले जो सारा process था, जिस तरह ने उन्होंने भी इतना अपने आप को, because वो कैरेक्टर भी बिल्कुल over the top हो सकता था. वो चीख चिल्लाती, लेकिन नहीं किया उन्होंने. उनका दर्द इतना अंदर से निकला है आंखों से. तो आई थिंक वो सबसे, दैट्स वाई जो कनेक्शन बना है ऑडियंस से इज ऑल्सो. Does it make you feel heavy when directing it? I felt heavy while watching it. No, that scene I remember, we were like, and you know, Shahzad, ultimate kind of great complimenting character with her. Yeah. दो, because बड़ा important scene था वो भी. हाँ. I don't know, heaviness होती है बाज़ दफ़ा हम हंस लेते हैं. अगेन जब बहुत एक चीज हैवी हो जाए ना, तो फिर आप हंसते भी हो, कभी आप बहुत मूव भी हो जाते हो. बट कुछ सीन्स में या वी वर, बिकॉज काफ़ी हैं इसके आगे, यू नो, सानिया सलमान के आएंगे, इसके हाजरा और अदील के सीन्स, सबा आपा के, सो दे वर वेरी इमोशनल सीन्स. अभी आगे मरीना के भी आएंगे. सो दे आर ड्रेनिंग. बिल्कुल है, स्पेशली जब गर्मियों में शूट हो रही होती है ना, तो और ज्यादा ड्रेनिंग होती है. मौसम आपके दुख को बढ़ा देता है. ये तो nothing more draining than the Karachi heat, honestly. So it's very important जब एक्टर्स के पास सेंस ऑफ ह्यूमर हो और सब एक दूसरे को हंसा सकें और मजे कर सकें. वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अब आप आ गई हैं लॉन्ग प्ले में फुल थ्रॉटल. बड़े दिनों तक आप बचत करती रही. नाउ यू आर हियर एंड यू वांट टू टेल स्टोरीज that hit a chord with the audience. Obviously उनमें से बहुत सी बहुत दुखी होंगी. हमारी कहानियाँ दुखी होती हैं. अब let's see, you know, again next वाला I hope it resonates, but it's completely different. Inshallah I hope. अभी हमें डॉक्टर बहू का भी मुझे थोड़ी पता था कि ये कैसा, मुझे नहीं पता था. कुछ होता है कि नहीं ये तो चलेगा, you know, कुछ नहीं, कहते हैं हमें पता ऐसा अब नहीं है. अब मेरे इतना एक्सपीरियंस हो गया ना कि बिल्कुल कुछ ना एक्सपेक्ट करो. लेट्स सी, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करोगे ना, फिर आपका दिल टूटेगा. तो बेस्ट है कि बिल्कुल लोएस्ट एक्सपेक्टेशन से जाओ. एंड जब अगर अप्रिशिएट हो गया तो बहुत अच्छी बात है. दिल टूटा है मेरीन. और यू नो, आई वंडर्ड बिकॉज जनरली योर ड्रामास हैव ऑलवेज बीन वेल रिसीव्ड, बट यू आल्सो बीन समवन हु एक्सपेरिमेंट्स. और हमारी ऑडियंस हमेशा एक्सपेरिमेंट को इतना नहीं एंजॉय करेगी.
जैसे कि नादान मुझे लगता है उतना नहीं देखा गया जितना नहीं। देखा जाना चाहिए था. इट वाज वंडरफुल. सो दिल टूटता है और डू यू बिकम अकस्टम्ड टू दीज हाइज एंड लोज? नहीं, टूटता है फिर उसके बाद जुड़ जाता है. आई थिंक जोड़ने की स्पीड बढ़ गई है. वो है कि आप अफेक्ट होते हो फिर 2-3 दिन बाद ऑन टू नेक्स्ट क्या करना है, बिकॉज आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि आप बैठ के उस पर ही रोते रहो. एंड आई एब्सोल्युटली एग्री. इवन नादान वाज अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट. आई थिंक बहुत अच्छा था. बहुत. एंड सुल्ताना आपा ने जो वो 3 ट्रिलॉजीज जो की थी, बहुत ही नीडेड थे थीम्स उसके. बहुत अच्छी थी. And नादान का भी थीम was excellent and Actors भी इतने pleasure अच्छे. working with Ahmed and Ramsha also. बहुत ही मज़ा आया. And उसमें बड़ा challenging था because ज़्यादातर हमारा outdoors and police station और Gritty था. mobs और हाँ, हाँ वो बिल्कुल ही different था. ड्राई था, ग्रिटी Dry था. था. वो रंग और वो म्यूजिक, Yes, वो yes. उस तरह की चीजें नहीं And थी same thing I उसमें. think hashtag contractors वो भी मज़े के थे. It was Hashtag like a भी. bit different, you know. It was. But वही I think 4-5 एपिसोड के लिए इतना क्योंकि कंपटीशन है, इतने सारे ड्रामाज हैं. आई विश के लोग बनाते रहें 4-5-10. Will you also? हाँ 100%. मैं करती रहूँगी. अभी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आई हैव 10 एपिसोड, couple of 10 episodes or 1 10 episode ग्रीन के साथ सोचा हुआ है. Okay. और इंशाल्लाह एक और सीरियल है जनवरी में. ओके, ग्रीन के साथ. तो यू आर, होता है ना कि एक डायरेक्टर ज्यादा एक चैनल के साथ काम हाँ, करें. आप नहीं वो मैं हर डायरेक्टर जगह जा नहीं रही हैं. हूँ. आप वो डायरेक्टर नहीं. नहीं नहीं नहीं. नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी प्लान तो है जनवरी में इंशाल्लाह. मेरा अहमद की स्क्रिप्ट है, सो दैट आई विल डू इन जैन. ओके. दिसंबर जैन. यस. ओके. उमेरा अहमद की स्क्रिप्ट भी आ रही है. आफ्टर लॉन्ग टाइम बिकॉज आई थिंक उमेरा और मेरा कुछ लकी चार्म है. Who's the cast? अभी कास्ट नहीं हुई. अच्छा, अभी तो ट्राई December कर रही हूँ में. जो मैं चाह रही हूँ अगर मिल जाए. बिजी भी तो बहुत है एक्टर्स. हाँ, बिजी तो बहुत. Lots going on with actors and even directors. So this means that you are now in Karachi perpetually. Have you moved back for sure? No, I come to work, then I go back for 4-5 months. I would say मैं यहाँ मतलब 4-5 महीने तो रहती हूँ, फिर rest of the time over there. लेकिन अब ड्रामे अगर आप बैक टू बैक कर तो अभी रही ये हैं, अगस्त में ख़त्म हो जाएगा. हाँ, तो 2-3 महीने की ब्रेक. हाँ वापस जा रही हूँ. एंड अगर ये जनवरी में हो रहा है then I'll come, you know, before obviously for pre and all of that. So ये हाँ मैं चाह रही हूँ एटलीस्ट ये हो जाए जब तक फिल्म जो मैं चाह रही हूँ करना वो ख़त्म हो जाए स्क्रिप्ट, और फिर पैसे ढूंढने का जो मरहला शुरू होगा. जमा कर लेना लॉन्ग सीरियल्स करके. No, मैं नहीं. वो सब खर्च हो जाता है. अच्छा, अगर इतने जल्दी खर्च हो जाते हैं, इसी वजह से तो इतने करने पड़ रहे हैं. हाँ मेरीन, यू नो आई रिमेम्बर आस्किंग यू दिस. मुझे 6 साल पर मैंने असल में सुबह सुबह पढ़ा है अपना पुराना इंटरव्यू, तो याद है मुझे, यू नो. एंड एक्चुअली आई वाज आल्सो इंटरव्यूइंग बियो राना फॉर सम टाइम अगो. तब भी आई शोड हर के देखे, यू नो, आई इंटरव्यूड मेरीन बैक देन, क्योंकि एक झूठी लव स्टोरी में उनका इतना अच्छा कैरेक्टर था, तो वो उसकी बात की थी हमने. खैर मैं क्या कह रही थी, पैसों की बात. हाँ, पैसों की बात हो रही थी. तब मैंने आपसे कहा था व्हेन यू सेड नहीं मैं अब लंबे एपिसोड्स नहीं कर रही, बहुत ड्रैग्स होते हैं. मेरा एक ड्रामा बर्बाद हो गया था क्योंकि उसके 6 एपिसोड बढ़ा दिए थे. यू नो व्हिच ड्रामा. यस यस. एंड अब मैं नहीं करूंगी, मैं शॉर्ट सीरीज करूंगी, मैं डिफरेंट स्टोरीज करूंगी. आई टोल्ड यू, आई हैड आस्क्ड यू हाउ इज दिस फाइनेंशियली पॉसिबल. एंड तो आ गई ना औकात पे अपने. औकात नहीं है. you have I mean नहीं I've been blessed बहुत ज़्यादा. I have no regrets. I think ये मेरा टाइम था to come back because serials का ऐसा एक resurgence हुआ है, as I said, के audiences and everything. So I think time था to do this and I enjoy it. And you come with so much credibility, years of experience. So जाहिर है लोग भी आपको seriously लेके थोड़ी उसूलन बेहतर स्क्रिप्ट आपकी तरफ आनी चाहिए. I think आती होगी, उसूलन तो आनी चाहिए. आती है बिल्कुल, कुछ आती है कुछ. कुछ नहीं भी आती. It's वही है because इतना काम है ना, तो obviously सारी स्क्रिप्ट्स तो अमेजिंग नहीं होंगी, but you try and pick the best. अच्छा, जो सबसे हिट ड्रामे होते हैं, सबसे बड़े हिट पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं, आपको पता है कौन से होते हैं? उसमें हीरो टॉक्सिक होता है, हीरो को खींच के कहीं इधर उधर लेके जाता है. शादी होती है लेकिन शादी के बाद दोनों अलग रहते हैं. और फिर केमिस्ट्री बिल्ड होती है. तो मेरा एक हमारा भी ऐसे ही कुछ था. केमिस्ट्री बिल्ड होती है. हाँ नहीं. Would you do a story like that still? नहीं उस तरह का नहीं. टॉक्सिक आई वुडंट डू इट बिकॉज मुझे इंटरेस्ट ही नहीं होगा.
वो उनकी अपनी जगह है, बहुत हिट होता है। वो हिट होते हैं। हाँ, अब मैंने क्या करना है हिट से, बस वो एटलीस्ट सबके लिए एक मतलब एक रिस्पेक्टेबल प्रोजेक्ट बन जाए एंड किसी को लॉस ना हो, बस ये एक्सपेक्टेशन। There have been lots of times when you talked about difficult actors, and especially, and we're not naming names at all, so don't, nothing, no. not going there. But वो यही बात के timing issues and professionalism issues, इस तरह के एक्टर्स आजकल बिजी हो गए हैं, एड शूट्स के लिए एकदम से कहीं चले जाएंगे और सब ढूंढ रहे होंगे, ड्रामा स्टॉल हो जाएगा, वो कहीं कुछ बेहतर हुआ है अब? आई थिंक डिपेंड्स एक्टर ऑन एक्टर। अच्छा, यानी अभी भी लाइक इसमें जिसने अभी लाइक यू नो लाइक इमाद एंड सनम हैव बीन सो गुड, सो एज कोमल, मतलब वेरी क्लियर के बीच में आई थिंक काफ़ी कुछ छोड़ा भी है उन्होंने, यू नो कमिटेड के मुझे वो देंगे इतना टाइम, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट ड्रामाज नहीं कर रहे, सो इट्स बीन ईजियर मतलब टू प्लान डेट्स एक्सेट्रा। सो कुछ करते हैं फिर बीच में गायब हो जाते हैं, कुछ नहीं करते। यानी अभी भी है बिकॉज ऑब्वियसली उनको यू नो एवरीवनस आउट टू, एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज एक्टर्स की इन दिस इंडस्ट्री इज एक सर्टन होती है जहाँ नॉट क्लाउड इन टर्म्स ऑफ, एंड शेल्फ लाइफ इज अ टेरेबल वर्ड टू यूज, बट वो एक पीरियड होता है ना जहाँ आपको काफ़ी काम मिल रहा है तो वो चाहते हैं कि वो उसमें कर लें ताकि दे ऑल्सो बिकम सिक्योर। Of course. Because so why would they say no to अगर ad आ गया या collaboration आ गई? Money is much better than drama serials. So I understand कि आप 2 दिन का काम ad में करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा compared to drama. So वो फिर हम we work out a system के अब तो ऐसा हो गया है कि if you someone needs 2-3 days off फिर हम manage कर लेते हैं। कभी आपको AI से चीट करना पड़ा है कि जैसे एक पीछे एक एक्टर खड़ा हुआ है असल में नहीं अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे। But is AI being used at all in your dramas? AI is being used for I'll say कि I use AI let's say क्योंकि मुझे रोज़ सीन्स आते हैं, इवन डॉक्टर बहू में ये किया था, जब सीन्स को मैं निट करती हूँ, समटाइम आई एम एन एडिटर ऑल्सो राइट, तो शूट से वापस आके अगर मैं सीन को देखना है विद म्यूज़िक, सो आई प्रॉम्प्ट AI से मैंने बहुत सारे ट्रैक्स निकलवा लिए और फिर मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक डाली टू सी हाउ द फीलिंग वाज कमिंग। यूज़ नहीं हुए वो इन द ड्रामे में, यूज़ नहीं हुए, लेकिन मैं अपने उसके लिए टू हियर कि वो इमोशन कन्वे हो रहा है या नहीं, तो उसमें आई जस्ट गॉट, क्योंकि AI में तो म्यूजिक 2 सेकंड में बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाती है ना, इतने सारे ऐप्स आ गए। सो लास्ट ईयर आई डिड ऑल ऑफ दैट अपने लिए जस्ट टू सी यू नो इफ दैट वाज वर्किंग। उसके अलावा AI नहीं, अभी तक नहीं हुआ, और ना ही हो इतना तो बेहतर है। आई थिंक वो एनिमेशन या उस तरह के इफेक्ट्स उसमें ज़्यादा होगा, बट एक्टर्स की लाइकनेस में नहीं आना चाहिए। आई फील दैट वो एक स्टैंड ले लेना चाहिए हमें भी। आई थिंक एक्टर्स कर रहे हैं यहाँ पे, बाहर भी ये हो रहा है, अब कर रहे हैं बिकॉज़ दे रियलाइज्ड कि या बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर लिख दें कि उनको आप उनकी शक्ल यूज कर लें, इट्स नॉट एथिकल एंड इट इज and for life, ये contracts कह रहे भी हैं कि for life, you know, तो then you're they stuck. have to, and actors must unite. ये नहीं कि एक एक्टर कह दे ओके और दूसरा कह नहीं, they have to come together. Do you think there's unity in the industry? Some places yes, mostly no. No? Do you think there's channel politics? Channel politics? कि ये एक्टर हमारे चैनल के साथ सिर्फ काम करेगा या ये डायरेक्टर सिर्फ हमारे चैनल के साथ काम नहीं ऐसा देखें, कुछ चैनल्स नहीं, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस ने डायरेक्टर्स को ऑन सैलरी ले लिया, हायर कर लिया, तो वो उनके लिए करेंगे, वो तो ठीक है। बट मुझे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है किसी से भी कि यही करना है या वो, अनलेस यू आर हायर्ड, तो वो सब नहीं है। ऑब्वियसली कुछ एक्टर्स, कुछ आई डोंट नो कि फेवरेटिज्म होगा या नहीं, बट आई सी कि सभी के साथ काम कर रहे हैं, राइट? आई हैव नोटिस कि ऐसा कुछ है। नहीं, मुझे लगता है कुछ एक्टर्स एक प्रोडक्शन हाउस के साथ ही काम कर रहे होते हैं या एक चैनल के साथ ही काम कर रहे होते हैं। आई डोंट नो इफ इट्स पॉलिटिक्स और मे बी इट्स जस्ट कंफर्ट जोन्स, मे बी कंफर्ट जोन, आपको आदत हो जाती है, एंड ये हो सकता है। हाँ, and I think you are Mehreen Jabbar, nobody's going to push you around and say कि नहीं हमने हमारे साथ आप ही काम करें फिर से। नहीं you come with that credibility and respect. हाँ, नहीं, but anyone else, freelancers को तो आप डिक्टेट कर नहीं सकते, उसूलन नहीं कर सकते, because आप पेरोल पे नहीं है। So okay, Mehreen,
Do the awards match to you? Do you ever think कि ओ इस ड्रामे का तो अवार्ड पक्का? कभी ये सोचा है दिमाग में? नॉट रियली. कौन से अवार्ड्स? लक्स स्टाइल अवार्ड्स? हाँ नहीं. नो नो. अभी आई डोंट नो. आई डोंट थिंक अबाउट इट. It हो doesn't गया तो occur बहुत to अच्छा you. हो जाएगा. हाँ. नहीं हुआ तो no biggie. नहीं नहीं. No biggie, yeah. I think the feedback that you're getting weekly, episode by episode, I think that's something you're enjoying more. Yes, yes, I love And you've just come back to this zone, yes, so yes. That's more you're enjoyable. experiencing it. Yes, the daily comments. Yeah. But yeah. अच्छा ये मुझे बताएं कि क्या वो एक डिमांड आपको लगता है कि ड्रामों में ये भी चेंज आया? क्योंकि मुझे लगता है आया है. आई एम सीइंग लेस ड्रैगी ड्रामास. आई एम सीइंग लेस फ्लैशबैक सीन्स अ लॉट ऑफ टाइम्स. डू यू फील द चेंज इज कमिंग कि इवन प्रोडक्शन कंपनीज एंड चैनल्स आर अंडरस्टैंडिंग कि लेट्स गिव क्वालिटी कंटेंट रादर देन extended? I think so, and also because they understand कि audiences काफी change हो गए. लोगों के पास not patience, but generally I feel एक इंसान की consciousness and personality affect हुई है social media and general modern lifestyles की वजह से. वो जो ठहराव जो पहले plays में होता था, even जो मैंने इतने पहले किए हुए थे, जो आप PTV के देखें, very different energy. अब pace is different. पेस लोगों को ऐसे ऐसे चाहिए तो वो अडेप्ट आपको करना पड़ेगा. ये अभी मैंने स्निपेट देखा था मैट डेमन और बेन एफ्लेक का नेटफ्लिक्स पे. वो भी यही कह रहे थे कि स्टूडियोज कभी कभी डिमांड करते हैं कि फिल्म में ना एवरी 10-15 मिनट्स आप कुछ करते रहो. अच्छा. और एक्सपोजिशन मतलब कि आप बता दो ऑडियंस को, स्पून फीड करो, क्योंकि आप ऑडियंस की अटेंशन जो है वो इतनी इधर उधर है. So वहाँ भी ये हो रहा है, यहाँ हर जगह ये हो रहा है. That is the changing world. So thank God, I think even channels and writers know के but drag नहीं करना. And directors are also evolving according to the audience. Yeah, we all have to evolve. Tastes. Otherwise, the channel changing or watching another thing is very easy now. Does this come easily to you, this evolution? जबकि कुछ लोग होते हैं वो old school होते हैं कि नहीं हम तो वैसे ही करेंगे, और फिर बहुत बार उनका फिर वो काम उतना resonate नहीं करता. Have you adapted to this changing audience more easily? I think project by project, like you have to adapt sometimes. Like there are certain things जो मेरा style तो नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा. Maybe थोड़ा सा और whatever commercial is called. जैसे for example बहुत दफ़ा लोग मुझे कहते हैं कि इतने तुम one takes क्यों कर रही हो, close-ups नहीं करती कुछ सीन्स में. हाँ मेरीना कभी कभी नहीं करती. हाँ नहीं करती. सो क्यों नहीं करती? नाउ बाज़ दफ़ा आई फील वो वन टेक में ज़्यादा अच्छा लग रहा है. You want to see both or three I people's want to reaction. see both of them together. Sometimes I feel कि इतना देखना वो body language से पता चल जाता है. So ये criticism आई है मेरी तरफ. काफ़ी one takes थे डॉक्टर बहू में भी. But the message came across, the emotions came across. Yeah, exactly. So then I feel अब मैं सोचती हूँ कि मे बी मैं ले लूँ क्लोजअप्स बट एडिटिंग में ना लगाऊँ. सो वो मेरे में आ गया डाउट थोड़ा सा. बट आई स्टिल काइंड ऑफ आई फील कि जो वन टेक सीन है उसको मैं करूँगी वन टेक, क्योंकि मैं शुरू से करती आ रही हूँ. अगर मैं सलमान और सानिया को साथ देखती हूँ तो मुझे फिर सलमान का भी एक्शन नजर आ रहा है और सानिया जो कह रही है वो भी, राइट? तो दैट इज अ वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी आल्सो, ऑब्वियसली. यस बिल्कुल. Yeah, I'm trying to see. There are a couple of interesting one takes coming up in the next few episodes. Let's see how they receive. You know, I thought the drama was wrapping up, but apparently there is some way to go. Not a long way. Not a long way, but है थोड़ा. I think एक महीना आप लोग से. Do you watch reviews of your dramas? I do. A lot of actors are very upset with reviews. Are you as a director upset with reviews, or are you like ठीक है? Really? That is refreshing. I mean, because reviewers review. अब मैं upset होके कुछ होना तो नहीं है. Sometimes people like it. Last few projects अच्छे reviews नहीं आए कुछ के. सही है. I mean, I may not agree हर चीज़ से. I may agree with some things. But मैं ये नहीं कहूँगी कि review ना करो. It's not my concern. Actors ने एक दो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने भी ये कहा कि कहाँ होता है, और इनफैक्ट शहजाद नवाज ने भी कहा रिसेंटली, बट एक्चुअली आई एम नॉट जस्ट पुटिंग दिस ऑन हिम बिकॉज मुझे और भी लोगों ने ये बात कही है कि रिव्यू कहाँ ड्रामे का होता है, एक एपिसोड का कैसे रिव्यू हो सकता है, पूरे ड्रामे का होता है, जैसे पूरी फिल्म का होता है पूरे ड्रामे का रिव्यू होना चाहिए. ये कहाँ होता है कि एक एपिसोड का रिव्यू हो, और ये गलत है, निच पिकिंग गलत है. यू आर ओके विद द निच पिकिंग? बाहर भी जब
जब सीजन्स आते हैं तो आई रीड, जैसे पहले 2 एपिसोड के रिव्यू आते हैं, फिर 4 के आते हैं So that क्योंकि happens. हाँ बाहर भी होता है, इट्स नॉट सिर्फ यहाँ. Hmm. सो रिव्यूअर्स रिव्यू, इट्स देयर ओपिनियन, इट्स वन पर्सन's ओपिनियन. Yeah. सो मुझे अगर लेसेस में अगर चीज़ नहीं पसंद आई हाँ. तो नहीं पसंद आई, मुझे इतना आई विल बी अपसेट, आए यार मलिया को अच्छी नहीं लगी, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ. नहीं, but you will be mildly upset. हाँ. It won't be the be all and end No, all. no, it's not, because and you will not. it's your opinion. It's हाँ. one person's हाँ, opinion. it's one person's And opinion. also you will not be so upset that you will come on Instagram and rant about it. No, no, no. You're not a ranter anyway. No, I'm not a ranter. No, there are lots of things to rant about, but not this. Marine, you did एक झूठी लव स्टोरी Z5 के लिए था, और वो वक्त था जब हम बहुत बात करते थे कि Yes. हमारे डायरेक्टर्स जो हैं और हमारा टैलेंट जो है उसे इंटरनेशनली भी काम करना चाहिए. जाहिर है इंटरनेशनल सबसे पहले दिमाग इंडिया पे जाता है क्योंकि ज़बान एक और हाँ, हाँ. कल्चर सेम, बैकग्राउंड सेम. सो डू यू थिंक Z5 शुड नॉट हैव बीन बैंड? एक झूठी लव स्टोरी पर्टिकुलरली सफर्ड क्योंकि उसके फौरन बाद बैन हो गया. I know. फौरन एक झूठी ban. लव स्टोरी के साथ बहुत ही उदास वाली का, बिकॉज इतने मजे का, बहुत अच्छा था. पाकिस्तानी सेंट्रिक था वो, हाँ, बिल्कुल ही एक. और बट हालांकि है यूट्यूब पे, जिनको नहीं उस पता, वक्त ग्रीन जब चैनल hype पे थी ना, हाइप थी, वो उस यहाँ वक्त नहीं वो आया. नहीं आया. नहीं आया, आई हाँ. नो. आई डोंट थिंक Z5 बैन हुआ. आई थिंक वो क्योंकि हालात हम दोनों मुल्कों के ऐसे हो गए हैं कि Z5, आई हैव टू से, बहुत कोशिश की उन्होंने और बहुत अच्छा काम करवाया. आई डोंट थिंक Z5 बैन हुआ है. वहाँ भी इश्यूज हो गए ना पाकिस्तान के हवाले से. नहीं, Z5 को हम हाँ, बैन हुआ था. यस, यस, सब्सक्राइब नहीं कर सकते ना हम उससे. हम हम पाकिस्तानी बैंक से पे करके Z5 को सब्सक्राइब नहीं कर सकते. बिल्कुल. और ये हुआ एक झूठी लव स्टोरी के रिलीज के एक हमें हफ्ते डेढ़ किस्मत हफ्ते खराब. बाद. यस. हालांकि one of वो my शो favorite. ऐसा था Yes, yes, yes. कि सब देखते. बहुत इतने है ना? मजे का, मजेदार. दैट यू वर बहुत सेइंग ना, मजे. टेंशन वाले ना देखे, ये तो हाँ. दिस वाज ऑल मजे का सीरियल. एंड हाँ. उमेरा एंड कॉमेडी जो कभी सोचा नहीं था, Imagine, yeah, राइट. yeah. तो एक तो मैं जनरली पॉलिटिक्स असाइड, बैनिंग नेवर हेल्प्स, लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान के अब हैं, अब there are political differences and all of that, and unfortunately culture and arts get affected. Yeah. It's sad because इतना टैलेंट है, अप्रिशिएट भी बहुत होते हैं. I mean, हमारे ड्रामे में इंडिया से इतने मैसेजेस आते हैं. हाँ, बिल्कुल. So people are Even watching. now. Yeah. People are watching. You have to differentiate between governments and people. People. Yeah. True. Not कि आप अपना एक ऑनर या एक जो भी होता है उसको सैक्रिफाइस करो. नहीं, पेट्रियटिज्म के अलावा की बात पेट्रियटिज्म के अलावा बात हो रही है अबाउट शेयरिंग, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. या. तो और हमारा बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी हैं कुछ जगहों की, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की, और लैंग्वेज और वो समझ जाते हैं. सो सेम एनीवे. बट यू थिंक अब इंडिया के साथ काम करने का दरवाजा फाइनली बंद हो गया? वो तो बंद हो गया टिल आई थिंक वहाँ कुछ गवर्नमेंट चेंज हो, या बिकॉज आई फील वहाँ ज़्यादा एनिमोसिटी है हमारी. हम तो दे आर मोर ऑब्सेस्ड. हर वक्त को पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान फिल्में बना रहे होते हैं. हमें इतना, हम अपने उसमें ज़्यादा हैं खुश. वो कुछ वहाँ ज़रा ऑब्सेसिवनेस है स्टेट की तरफ से. हाँ. बहुत ज़्यादा. हाँ. बट इन टर्म्स ऑफ आई हैव टू से कि जो बाहर लोग काम कर रहे हैं, आसिम अब्बासी इज डूइंग अमेजिंग वर्क इन यूके. अभी उसका द अदर बेनेट सिस्टर चला है BBC पे, ह्यूज रैंकिंग्स एंड व्यूअरशिप. नेटफ्लिक्स पे उसका चल रहा है जिसमें गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर, इज डायरेक्टेड फ्यू एपिसोड्स. सेम विद मीनू हु डिड कातिल हसीनाओं के, एंड तो शी इज डायरेक्टिंग वहाँ पे यूके में. तो ये हमारे. What about you, Mary? What about you? You are currently just working in Pakistan. हाँ, I'm मौका नहीं मिल रहा ना मैंने ढूंढा ना मिला. बट बहुत बात यही है कि पाकिस्तान में भी इतना अच्छा काम हो रहा है कि जस्ट वर्किंग इन पाकिस्तान नहीं है. जस्ट वाला वर्ड इज नॉट रियली एप्लीकेबल हियर. But I do feel whether it's you or our actors even, we have so much talent that we deserve better budgets, better infrastructure. We do. और जब तक तो पाकिस्तान में नहीं आते, एटलीस्ट कुछ आपका दिल खुश हो सकता है इंटरनेशनली काम करके. बिल्कुल. And I feel more फिल्में अगर बने इस तरह, and जैसे अभी सरमद, I'd have to say कि वो बनाता है अपने passion projects. अभी उसकी लाली जो went to Berlin, and so he keeps doing what he
loves to do, and वो भी बहुत मुश्किलात से, it's not Maybe easy. you also do. You might be doing dramas that you weren't doing earlier, but you're doing dramas that interest you. Yeah, I am. ऐसे तो नहीं है ना कि आप जबरदस्ती टॉक्सिक हीरो वाले थप्पड़ ढाड नहीं। शो ऐसा वाला तो कुछ नहीं कर रही नहीं। I think that applies to you also. And I'm giving you just a year, and you'll be back doing some really innovative short film Just or series. pray I can do a film next year. I'm looking Please forward pray to for that. No, That is what I want to make a I'm third also praying film. for you to do more dramas. You're so good ड्रामे at तो it. कर रही हूँ ना अब उसके And अलावा also in dramas, you may be working with a supremely sad theme, but you don't prolong the sadness. I love that कि कहानी जैसे जिंदगी आगे जाती है वैसे ही आपके ड्रामे में भी sadness के बाद अगली बात पे कहानी आती, एक पूरा एपिसोड आप रोने और Depression, मातम पे नहीं गुजार रही. यस एंड वो ऐसा स्क्रिप्ट भी नहीं है ना कि आप अगर वो ऐसा स्क्रिप्ट मिल जाए तो फिर उसको देखना पड़ेगा कि कैसे उसको लाइट कर सकते हैं. फिर देखना. Then you will have a challenge before you. Thank you so much, Mehreen. This was wonderful discussing Dr. Bahu at this time particularly, and also meeting you after so long. Same here. Thank you so much. Till the next drama, Mehreen. Inshallah. Inshallah. Thank you. Thank you.